بارش سے نظام زندگی تاحال متاثر، صورتحال معمول پر نہ آ سکی، متعدد علاقوں میں پانی تاحال موجود، لٹھ ندی بفر گئی، سپر ہائی وے پر متعدد گوٹھ زیر آب، سادی ٹاؤن میں بھی پانی جمع، اسکیم 33 کا علاقہ بھی ڈوب گیا، ملیر ندی میں طغیانی کورنگی کاز وے پر گاڑیاں ڈوب گئیں، فوجی جوانوں نے گرڈ اسٹیشن پر ریت کے ذریعے پانی کے بہاؤ کو روک دیا۔ کہیں پانی تو کہیں کیچڑ، بارش کے بعد کراچی کا حلیہ خراب، مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں، انتظامیہ غائب، شہری اپنی مدد آب کے تحت نالوں کی صفائی میں مصروف، جیکب لائن کا گرلز اسکول بھی تالاب بن گیا، طالبات پانی میں سے گزر کر کلاس رومز میں جانے پر مجبور، اساتذہ پریشان۔ کچھ بچے گر بھی گئے تھے آج پانی کے اندر کیونکہ آتے ہوئے، اور مچھر سارے جمع ہو گئے، کلاسز ہماری برابر میں ہی ہیں تو بیٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہم نے ورکس ڈپارٹمنٹ میں بارہا اپلیکیشن دی ہے کہ تھوڑا سا ملبہ ڈال کے تھوڑا اونچائی کر دیں تاکہ جو ہے ہمارا یہ بچوں کو اس طرح سے دشواری نہ ہو۔ کہ الیکٹرک کلر الیکٹرک بن گیا، بارش کے باوجود حکام نے کوئی انتظامات نہ کیے، مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات، اموات 23 ہو گئیں، 2 ننھے پھول بھی خاک کے سپرد۔ کراچی میں بارش کے بعد تباہی، ذمہ دار کون؟ حکام بلیم گیم کھیلنے لگے، این کیو ایم نے ملبہ سے حکومت پر ڈال دیا، کہا سندھ سرکار کا رویہ ٹھیک نہیں، کراچی کے پیسے سے عیاشی کی جا رہی ہے، شہر پر خرچ کچھ نہیں ہو رہا، وزیر بلدیات سے نے ذمہ دار میئر کراچی کو قرار دیا، کہا نالے صاف کرنا میئر کا کام ہے، گورنر اور صدر کا تعلق بھی کراچی سے ہے، انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا، صوبائی وزیر نے وفاق سے کے الیکٹرک کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی کچرا کنڈی بن گئی، بارش کے بعد کیچڑ ہی کیچڑ، قربانی کے جانور بیمار ہونے لگے، بیوپاری پریشان، مشکلات سے نجات دلانے کوئی نہیں آیا۔ اندرون سندھ میں بھی بارش نے جل تھل ایک کر دیا، حیدرآباد کے کئی علاقوں میں تیسرے دن بھی پانی جمع، لطیف آباد اور قاسم آباد جھیل کا منظر پیش کرنے لگے، پانی گھروں میں داخل، فوجی جوان امدادی کام میں مصروف، ڈپٹی کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مشتعل عوام نے گھیر لیا۔ کرسی رہے گی یا نہیں، صادق سنجرانی اور سلیم مانڈوی والا کی قسمت کا فیصلہ کل ہوگا، سینٹ کے اہم اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر خفیہ رائے شماری ہوگی، بڑے اجلاس کی صدارت سینیٹر بیرسٹر سیف کریں گے، جو پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے، جماعت اسلامی کا غیر جانبدار رہنے کا اعلان، سراج الحق کہتے ہیں اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جو نمبرز اپوزیشن گیدر کر رہے ہیں وہ تو اس کو نکالنے کے لیے تو زیادہ نمبرز ہیں ہمارے پاس، اور اصولاً بھی یہ سٹیپ اچھا ہوتا کہ چیئرمین سینٹ صاحب اپنے استعفیٰ دے۔ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے متحدہ اپوزیشن ایک پیج پر، بلاول بھٹو کا متحدہ اپوزیشن کے سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ، تحریک عدم اعتماد کی حکمت عملی طے کر لی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے صادق سنجرانی کو مستعفی ہونے کا مشورہ دے دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا کل صادق سنجرانی اپنے نشست پر نہیں رہیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے استعفوں سے متعلق خبروں کی تردید کر دی، عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کا اعلان، صادق سنجرانی کی پارٹی اور حکومتی ارکان سے ملاقات، تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت، رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے چیئرمین سینٹ کے مستعفی ہونے کی باتیں کر رہی ہے۔ پاکستانی نوجوان باصلاحیت ہے، نوجوان نسل کے ہاتھوں پاکستان یقیناً ترقی کرے گا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آئی ایس پی آر میں انٹرنشپ پروگرام کے نوجوانوں سے ملاقات میں گفتگو۔
बुज़दिल भारत बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के टेटवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, 4 साला बच्चा शहीद, खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। बच्चे का वालिद सिद्दीक गुज़िश्ता रोज भारतीय फायरिंग से जख्मी हुआ था। लोग अयादत के लिए जमा हुए थे। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। भारत कश्मीर में नाकामी पर सरहदी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। भारत को हमेशा मुअस्सर जवाब दिया और देते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में कहा, भारतीय फौज जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाती है, मासूम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया। DG साउथ एशिया ने वाज़ेह किया कि भारतीय खिलाफ वर्जियों से खित्ते के अमन को खतरा लाहक हो सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला बांडीपुरा में नाम निहाद ऑपरेशन, मजीद 3 शहरी शहीद कर दिए। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फट पड़े, कहा भारत मसला कश्मीर से नजरें चुरा रहा है। हमारे पास इस वक्त कैश की कमी, आजकल हमारा बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 50 लाख घर। टाइम लेगा। पाकिस्तान में 1.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है। हम उन लोगों को मौका देंगे घर बनाने का, घर ओन करने का, घर जिनके पास वसाइल नहीं है आज घर खरीदने के लिए। पाकिस्तान में 1.25 करोड़ घरों की कमी है। चाहते हैं अवाम आसान किस्तों पर घर बना सके। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, अपोजिशन पर भी तनकीद। कहा, माजी की लूट मार की वजह से खजाने में पैसा नहीं है। साबका दौर में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, अवाम के पैसों से जायदादें बनाई गई। करतूत और इल्जाम देकर गिरफ्तारी का पहले से बता देता हूँ। वफाकी वजीर फैसल वार्डर की अपोजिशन पर घन गरज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। बारिश के बाद शहर का बुरा हाल है। वफाक कराची के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह भी नैब के रडार पर आ गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में 9 इंक्वायरीज की मंजूरी। साबिक गवर्नर KP सरदार मेहताब खान अब्बासी और CEO सेप्को मुनव्वर नज़ीर भी शामिल। चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस में पेशी, 45 मिनट तक पूछताछ। लीगी रहनुमा नैब को मुतमईन न कर सकी, सवालनामा थमा दिया। रिकॉर्ड समेत 8 अगस्त को दोबारा पेश होने का हुक्म। जज अरशद मलिक से मुतालिक वीडियो स्कैंडल साइबर क्राइम की अदालत ने नामजद मुल्जिम नासिर जंजुआ की 8 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम ने हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा अदालत में जमा कराया। 5 लाख के मचलके के एवज जमानत मंजूर की गई। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन साफे से बाहर किनाल रोड पर शहरी की धुलाई कर दी। चालान न करवाने पर वायरलेस फोन से शहरी का सर भी फाड़ दिया। शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने और फिक्स टैक्स आयद करने की शर्त। ताजिर बरादरी एक बार फिर सरापा एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए ताजिर तंजीमों ने ईद के बाद एक बार फिर शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। पहले मरहले में 15 और 16 अगस्त, जबकि दूसरे मरहले में 26 और 27 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अहम तरामीम का सर्कुलर जारी। सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए मुकर्रर। माहाना 2 लाख रुपए से जायद प्रॉपर्टी किराए पर देने से हासिल आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। अवाम के लिए अच्छी खबर, रोटी की पुरानी कीमत बहाल। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 अरब से जायद की सब्सिडी की मंजूरी दे दी। छोटे तंदूरों को गैस सब्सिडी दी जाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी।
ओबरा ने 5 रुपए 15 पैसे बढ़ाने की सिफारिश कर दी। डीजल 5 रुपए 65 पैसे, मट्टी का तेल 5 रुपए 38 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ओबरा की समरी हुकूमत को इरसाल, फैसला आज हो जाएगा। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के असातिज़ा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज 24वें रोज भी जारी। असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी, पुलिस का एक्शन, 8 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 12 से 15 अगस्त तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक पाकिस्तान की मुमताज रहनुमा, बानी पाकिस्तान की हमशीरा, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 126वां यौम विलादत। क़याम पाकिस्तान के बाद भी कायद आज़म के शाना बशाना मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी का अजीम मुजाहरा किया। पहली वर्ल्ड सीरीज पाकिस्तान की सिविल क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना। 16 रुकनी टीम की क़यादत निहार आलम कर रही है। सीरीज में इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शरीक होंगी। लाहौर में पंजाब इंटर डिवीजन किक बॉक्सिंग और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग तकरीब। नौजवानों ने जिम्नास्टिक का मुजाहरा किया। कौमी परचम थामे नौजवान, स्केटर्स ने भी खूब रंग जमाया। और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बारिश के बाद से शुरू होने वाली तबाही की दास्तान से। बारिश तो थम गई, लेकिन उसके बाद शहर का कोई वाली वारिस नहीं। हर इलाके में पानी ही पानी है। निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं। ठड्डो डैम से आने वाले पानी ने तो स्कीम 33 को पानी पानी कर दिया। दर्जन से जायद सोसाइटी ज़ेरे आब आ गई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ है। सुपर हाईवे पर कायम कई गोट डूब गए। इंतजामिया गायब है और आवाम परेशान है। पूछने वाला तक कोई नहीं। बारिश तो थम गई, मगर सितम अब भी जारी। बेनकाब हो गई कराची की इंतजामिया की नाअहली। ठड्डो डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने स्कीम 33 को पानी पानी कर दिया। सुपर हाईवे पर कायम कई गोठ डूब गए। शहरी अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ। सादी टाउन, सादी गार्डन, रईस अमरोही, कनीस फातिमा सोसाइटी और क्वेटा टाउन समेत दर्जन भर से जायद आबादियां ज़ेरे आब हैं। मगर हुक्काम ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि ये इलाके बरसाती पानी के बहाव वाली जमीन पर कायम है। उधर केडीए ग्रेड स्टेशन में बरसाती पानी भर जाने के बाइस हजारों मकानात पर मुश्तमिल सोसाइटीज बिजली से महरूम हैं। सुबह आके ये दीवार भी टूट गई, उसके बाद ये घर आप देख रहे हैं ये भी टूट गए। बच्चे थे छोटे छोटे, तो किसी किस्म का कोई बंदा नहीं आया है पानी निकालने के लिए। अभी देखा सारा पानी जा रहा था, क्या करे, ना सामान निकाला ना कोई निकाला। कोई भी नहीं आया हुकूमत की तरफ से, किसी ने भी साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। शायद बिलखते शहरियों की दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। 2 दिन की बारिश ने कराची का तो हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें तालाब बनी है, कई इलाकों में पानी अब तक खड़ा है। स्कूल और दफातर जाने में भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं ना जाने इंतजामिया कब जागेगी। सड़कों पर पड़ा पानी, इलाकों में कीचड़, ये है तरक्की याफ्ता शहर कराची, जिसका बारिश ने हुलिया बिगाड़ दिया है। कोरंगी कॉजवे के करीब नदी भी छलक पड़ी। पानी सड़क पर आया तो गाड़ियां बह गईं। ऑफिस जाने वालों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। आप लोग देख रहे हैं ये बुरा हालात हुआ है। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2 दिन हो गए ये रोड बंद है। कितने लोग बसे में जो कंपनी नहीं जा पा रहे हैं, ये कंपनी जाएंगे नहीं जाएंगे तो छुट्टियों के बसें कटेंगे, और जो दूसरे इसके मुतबादिल रास्ते हैं वो इतना जाम है कि पहुंचने में आधे सारा दिन गुजर जाएगा। गाड़ी बंद हो गई, ना आगे जा सका ना पीछे। बहुत कोशिश करी, जब पानी ओवर हो गया ना गाड़ी के अंदर तो फिर क्या हाल था, गाड़ी की छत्ता आ गए।
ओल्ड सिटी एरिया की मार्केटों का तो बुरा ही हाल है। पूरा कपड़ा खराब होगा, किसी का माल खराब हो गया तो बोला गीला करके ले आए। बारिश रुके हुए काफी टाइम हो गया, मगर ये है कि ये सारा पानी बाहर से अंदर आया हुआ है और पानी अभी तक निकला नहीं है। जैकब लाइन का गर्ल्स स्कूल भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। तालिबात क्लासरूम्स तक जाने के लिए पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। पानी जमा हो गया है, इसकी वजह से हमारे टीचर्स बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि इस पानी से गुजर के आना पड़ता है। हमने अपनी मदद आपके तहत सारी छतें भी साफ करवाई हैं ताकि छतों से पानी न गिरे। बारिश तो सिर्फ 2 दिन हुई, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बाइस शहरी कितने दिन मुसीबत झेलेंगे मालूम नहीं। कराची में कायम एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी पानी में डूब गई। पानी में खड़े जानवर भी बीमार होने लगे। वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी या किसी गली मोहल्ले की कचरा कुंडी, हर तरफ पानी ही पानी, कीचड़ और दलदल बयान कर रहे हैं तबाही की कहानी। व्यापारी ही नहीं, खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी परेशान हैं। बारिश हुई है, बहुत गरीबों का व्यापारियों का नुकसान हो गया है। कितना पानी खड़ा है दी, कोई आया है पूछने के लिए भाई पानी निकालना है, कहाँ जाना है, किस तरफ आपको बिठाएं। करोड़ों रुपए की मंडी का ठेका देने वाले क्या सूरत हाल का भी ठेका उठाएंगे और आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। कराची में बारिश के बाद तबाही पर हुक्काम ब्लेम गेम खेलने लगे हैं। कराची को ओन करने वाला कोई नहीं, वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी इत्तेहादी जमात MQM और पीपल्स पार्टी पर डाल दी। फैसल वाडा कहते हैं उनको वोट देने वाले खुद कारकर्दगी देख लें। अली जैदी बोले 50 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। वफाक कराची को तनहा नहीं छोड़ेगा। ये मसला तो लोकल बॉडीज और पीपल्स पार्टी का है, तो ये तो कम्प्लीटली फेलियर है पीपल्स पार्टी का। इतने मासूम लोगों की जाने चलेगी, वोटर को अब समझना पड़ेगा कि उसने वोट किसको देना और क्या सोच के देना है। कराची में 50.4 मिलीमीटर रेन पड़ी है। इस बारिश में शहर डूब गया और अगर इस बारिश के ऊपर अगर ये हाल है तो सोचें कि अगर खुदा ना खासा और पड़ जाती तो क्या होता। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और सिंध के वज़रा मलबा, वफाक और मेयर कराची पर डाल रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं नाले साफ करना मेयर कराची का काम है। ये भी कहा कि गवर्नर और 2 वफाकी वज़रा का ताल्लुक कराची से है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। कानूनी तौर पर भी नालों की सफाई जो है वो बड़े नाले जो 38 हैं वो KMC के पास हैं और जो 200 के करीब छोटे नाले हैं वो DMC के पास हैं। उनकी सफाई उन्होंने करनी होती है। हमने उनको पिछले साल 50 करोड़ रुपए दिए। अगर कल हम कोई नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि नालों की सफाई भी जो है वो मेयर ने नहीं करनी, हमने करनी, तो फिर कहेंगे कि ये मेरा अख्तियार भी उन्होंने छीन लिया है। जब कराची में बारिश हो रही थी तो ये दोनों वफाकी वज़रा जिनका ताल्लुक कराची से है वो कराची में मौजूद नहीं थे। ये अच्छा होता कि वो कराची में मौजूद होते, मॉनिटर करते सारी चीज़ों को। बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली पर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। वज़ीर बल्दियात ने जिम्मेदारी मेयर पर डाली तो MQM दिफा में आ गई। मेयर कराची को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। कंवर नवीद जमील कहते हैं कराची और हैदराबाद का बुरा हाल है। सिंध सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही, सिर्फ अय्याशियां कर रही है। हम ये मुतालबा करते हैं कि सिंध हुकूमत कराची को मकबूजा इलाका समझना बंद करे। कराची के साथ साथ हैदराबाद का हाल इससे भी बदतर है। जिनके पैसों से सिंध हुकूमत चल रही है, जहाँ से उसकी अय्याशियाँ चल रही हैं, कराची पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। उन लोगों को के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों मर रहे हैं। बारिश के दौरान 6 बच्चों समेत 23 कीमती जानें ज़ाया हो गई। कराची इलेक्ट्रिक या कातिल इलेक्ट्रिक, बरसात में शहर पर कयामत ढा दी। कातिल तारों में दौड़ते करंट ने 23 जिंदगियों की डोर काट दी। किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी का जिगर गोशा हमेशा के लिए सो गया। नाजिमाबाद के नन्हे अहमद का जनाजा उठा तो इलाके में कोहराम मच गया। मरहूम के वालिद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, दूसरा एक पार्टी दूसरी पार्टी को कह रही, दूसरी पार्टी कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं होता। अवाम तो अदालत जाएंगे, लेकिन क्या हुक्मरान भी सानहे पर आवाज उठाएंगे या के इलेक्ट्रिक
यूं ही कत्लेआम करती रहेगी।